Welcome back, my dear students of grade 6. As you know, we are doing the fourth chapter of history, that is the four cities. And in this chapter, we have studied about the Indus Valley civilization. In the last video, we have studied about the town planning of the Indus Valley civilization. And today, we are going to study the social लाइफ ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन कि उस टाइम उन लोगों का रहन सहन कैसा था, किस तरह की सोसाइटी में रहते थे, उनका खान पान, ऑक्यूपेशंस, इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. एट दैट टाइम द पीपल एट सिंपल फूड लाइक wheat, barley, milk, fruits, meat, etc. And the archaeologists also found some clay spindles. Clay spindles भी मिले हैं उस टाइम. What are the clay spindles? Clay spindles क्या होते हैं? These are the instrument that we used while spinning to twist the thread. जो thread जो हम spinning करते हैं, यानी कि हम कपड़ा बनाते हैं, उस टाइम धागे को ट्विस्ट करने के यूज़ होते हैं. इनसे पता चलता है कि एट दैट टाइम पीपल आल्सो न्यू द आर्ट ऑफ वीविंग, कि उन्हें कपड़ा बुनना आता था. एट दैट टाइम द पीपल आल्सो फॉन्ड ऑफ वियरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी. अलग अलग तरह के गहने पहनने का उन्हें भी बहुत शौक था. एट दैट टाइम बोथ द मैन एंड द वुमेन वियर ऑर्नामेंट्स. मैन और वुमन दोनों ही पहनते थे. एंड दीज आर made of gold, silver, bronze, ivory. Now, occupation. Occupation means which type of work they do at that time. कौन सा काम करते थे. The main occupation of Indus Valley people was farming, and they also do some another work, like they also made the pots, and they make the pots of different design and they color with red paint, and also made some geometrical design on these pots with the black color. You can see in this picture. And they also, some people also do the work of toy making. See, different types of toys that we have found in the various sites of Indus Valley civilization. And some people also make jewelry, as you have seen the pictures. Jewelry, the pupils of that time also found of making different types of ornaments. And now we will study about the art and sculptures. Art and sculpture means different type of statues that we have found at that time, show that they know the work of making statue. हमें उस टाइम अलग तरह के स्टैचूज मिले हैं, एनिमल्स, टॉयज, एंड दिस इज़ द फेमस statue that we have found at that site. It is a statue of a man wearing shawl on the left shoulder. It shows the rich style of that time people. And the one more famous statue that we have found in the Indus Valley civilization, the statue of dancing girl. Clear? It is made of bronze. More than 2000 seals have been found from the various sites, and these seals were made of from the soft stones and ivory and from the clay, and these are mostly of the rectangular or the square shape, and these seals were used as a stamp on the packages of the various goods. Now, my dear students, we will learn about the religious beliefs of these people. जो हमें उस टाइम की अलग अलग सील्स मिली हैं, उस पर जो पिक्चर्स बनी हैं, these are of different animals, birds and trees. It shows that they worship nature. वो नेचर की वर्शिप करते थे. इसके अलावा हमें एक सील मिली है वहाँ पर, जहाँ पर एक मेल फिगर है.
जो योगिक मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके आसपास कुछ एनिमल्स हैं. इट शोज दैट दे वर्शिप दिस मैन, दैट इज नोन एज पशुपति. एंड इसके अलावा कुछ फीमेल डाइटी यानी पिक्चर्स मिली हैं, स्टैचू मिले हैं लाइक दिस, एंड इट सीम्स लाइक द मदर गॉडेस. वह इसकी भी पूजा करते थे. और इसके अलावा ट्रीज, जो सेक्रेड ट्री था उनके लिए, दैट इज पीपल, पीपल की वर्शिप करते थे. एंड दे ऑल्सो हैव द बिलीफ दैट देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ. उनको जो पूरा विश्वास था जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी एक नई लाइफ शुरू हो जाती है. इसलिए जब भी कोई आदमी की डेथ हो जाती थी तो वो उसके साथ उसकी डेली यूज़ की जो आइटम्स होती थी उसको साथ में बरीड कर देते थे. नाउ ट्रेड, विच टाइप ऑफ ट्रेड they were doing at that time. At that time, the Harappa region, they also trade with the other countries. The surplus goods, जो भी उनके पास सरप्लस बच जाता था उनको वो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते थे और जिनकी उन्हें नीड्स होती थी वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे. और ट्रेड वो दोनों रास्तों से करते थे, लैंड के थ्रू भी करते थे और सी के थ्रू भी करते थे. क्लियर? एंड दे यूज बुलक कार्ट्स एंड द शिप्स फॉर डूइंग द ट्रेडिंग पर्पस. एंड दे आल्सो यूज यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड measures. These were the measures and the weights were used at that time. And the famous port through which they trade with the other countries, that is Lothal. Lothal place था. And the Harappa had a trade link with the areas, means countries like Mesopotamia, and presently we know him as Iraq, अफ़गानिस्तान, पर्शिया मीन्स ईरान. इनके साथ वो ट्रेड करते थे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल नो हाउ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन गॉट डिक्लाइन, कैसे ये ख़त्म हो गई. द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 2500 BC to 1500 BC and it declined suddenly after 2000 BCE. 2000 BCE के बाद ये डिक्लाइन यानी धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई. तो क्या रीज़न थे इसके? तो इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को सही नॉलेज नहीं है कि क्या रीज़न हो सकता है, बट वी कैन अज्यूम दैट द सिटीज़ माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक्स और द फ्लड्स. हो सकता है सिटी में कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आगे हों या फ्लड्स आगे हों जिससे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय होगी हो, या चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर, या रिवर का कोर्स चेंज हो गया होगा. कोर्स मीन्स उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली होगी. जिस तरह से रिवर बह रही होगी तो उसने दूसरी साइड उन्होंने फ्लो करना शुरू कर दिया होगा, जिससे क्या हो सकता है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होगी. डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ द सोइल ड्यू टू एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन. या फिर डिफोरेस्टेशन क्या होता है, जब हम ज़्यादा ट्रीज़ को कट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज डिफोरेस्टेशन. हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट किया हुआ, जिससे क्या होता है, सोइल की क्वालिटी कम हो जाती है, मीन्स सोइल अनफर्टाइल हो जाती है, जिसके कारण उन्होंने दूसरी जगह पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया होगा, जिससे वहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई. एंड डिस्ट्रक्शंस बाय द इन्वेंशन ऑफ आर्यंस. जो आर्यंस लोग इंडिया में इन्वेशन के लिए आए, हो सकता है उनके डिस्ट्रक्शन से, उनकी जो बैटल्स थी उनके कारण भी ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन होगी. These are the reason. For actual reason, no one knows how this Indus Valley civilization get declined. I hope, my dear student, all of you understand about the social life, the religious beliefs, the occupations, trades, etc. about the Indus Valley civilization. Thank you
for watching the video.